Hello student, welcome to the class. In previous class we discussed about the organization. Okay, so what is organizing? So under organizing, that is organizing is the functions of management. So under the organizing we studied importance of organizing and we started organizational structure. Okay, so what is organizational structure? Organizational structure is nothing but it is the framework, that is the framework within which the managerial and operational task has to be performed. Okay, so that is the organizational structure. So under the organizational structure, I said that organizational structure is are divided into two groups. One is functional structure, another one is divisional structure. So functional structure हम बता चुके थे आपको. Functional structure means it is based on the functions. Okay, the structure which is divided into on the basis of functions they are performing. Okay, so what happened in the functional structure? Functional structures में the similar jobs are grouped together. The जो भी jobs होगा, similar jobs are grouped together. So according to the basis, on the basis of functions. Okay, that is known as a functional structure. So functional structure कैसा एक organization में structure हम करेंगे. Like आप जानते ही हैं कोई भी organization without एक structure, without a framework, कोई भी organization हो वो कोई भी जगह पे हम काम जो है complete नहीं कर सकते हैं. Organizational में भी structure is very important one. Job designing is very important one. आप कौन सा जॉब करने वाले हैं, what is your authority, what is your responsibility, ये जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक हम कोई भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकते. सो फॉर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, सो अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, आई सेड फंक्शनल स्ट्रक्चर. व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? इट इज suitable for the organization which is large but deals with the single product. Okay, which deals with the single product. So single product को अगर कोई भी डील कर रहा है then automatically for that organization it is suitable. Okay, और जहाँ पे हायर डिग्री परफॉर्मेंस का जरूरत पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा, वो जगह पे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट कर सकते हैं. सो फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा डिवाइड होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर डिवाइड लाइक दिस. अ मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी देयर. Okay, under the managing director the divisions will be there. Okay, divide करेंगे हम according to the function. So in an organization if you are producing something, जो हम जो है production का काम कर रहे हैं, so definitely there may be a first production department. Okay, so it not production first department, आपका department रहेगा, division रहेगा, production department, finance department, finance department, then marketing department, and a sales department. Okay, sales like purchase and other things, ये सभी जो है इसमें आ जाएगा. Okay, so now ये डिवीजन हम करके रखें. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डिवीजन? सो जो भी वर्क हम जो वर्क करेंगे, द सिमिलर जॉब्स, जो भी द रिलेटेड जॉब्स जो भी होगा, दैट शुड बी ग्रुप्ड इन अ प्लेस. ओके, सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे? क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन करेंगे. ओके, प्रोडक्शन होगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब जो है हम यहाँ पे हम देखेंगे. सो रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल एंड रिगार्डिंग द प्रोडक्शन व्हाट एवर बी द जॉब्स दैट शुड बी डन हियर. ओके, सो इसमें जो भी होगा, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे, ये जो है इसका जो भी वर्क होगा दे विल डील विद इट. अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर. रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वी स्टडीड कैपिटल स्ट्रक्चर. सो कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे. फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल और financial planning, these works are performed in this department. Okay, so finance, related to finance, whatever the activities are there, that should be performed in the finance department. Then come to the marketing department. Marketing department में आप क्या करेंगे? मार्केट करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना, रिसर्च एंड अदर थिंग्स जो भी होगा आपको, ये सब कुछ जो है आप यहाँ पे देखेंगे. देन व्हाट इज द सेल्स डिपार्टमेंट? सेल्स डिपार्टमेंट में आप सेल्स करेंगे, प्रोडक्ट को सेल्स करना होगा आपको. सो अदर फंक्शंस आर देयर. सो जितना भी जॉब्स होगा, ऑल द जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर. ओके, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो जॉब को करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? दिस इज द फंक्शनल डिपार्टमेंट. नाउ यू गॉट दैट हाउ द फंक्शनल डिपार्टमेंट वर्क्स. सो इट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, व्हाट दे आर डूइंग. प्रोडक्शन
producing the goods, so the function is on production department, the function is performed by the production department. Quality control कौन perform करेंगे? Quality control is performed by the production department only. इसी तरह आप each and everything जो भी होगा वो आप according to the function आप क्या करेंगे? Group करेंगे, that is known as a functional department. Okay, now other functional structure, second structure मैंने कहा था आपसे, it is a divisional structure. Okay, so divisional structure, next we will see what is divisional structure. Functional structure grouped on the basis of function. So how divisional structure grouped or perform? So divisional structure क्या है? So divisional structure क्या होगा? Like where the organization producing more than one product. So there the divisional structure is needed. Okay. So single product आप produce करेंगे, so function के हिसाब से ही आपको करना होगा और कोई problem नहीं होगा. But in case the organization is producing more than one product, one type of product, then automatically there is a need of division for each and every type of product. Okay, so अगर each and every type of product का division नहीं होगा, there may be a confusion, there may be a conflict. Okay, conflict arise होने का chances are there. So to avoid this, the things are divided. Okay, the things क्या करेंगे? उनको divide कर देंगे under the division. Okay, so that is known as a divisional structure. Okay, now divisional structure कैसा होगा? So divisional structure में board of directors, in every structure there may be a board of directors. Then again it comes under the managing director. आप डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर का भी डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर नाउ देन यहाँ पे डिवाइड होगा. कैसा डिवाइड होगा? सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, सो the activities related to the product, that is for example the organization is producing medicine, soap, textile, etc. Okay, so activities related to the medicine is grouped under the medicine department. Okay, so ऐसा आपको सभी को divide करेंगे. So say for example the organization is producing medicine. Okay, medicine produce कर रहा है, then textile produce कर रहा है, then textile के बाद soap, then footwear. Okay, now every activity is related to medicine grouped under the medicine department. Okay, so medicine department में आपको medicine department में क्या क्या काम करना होगा? Now यहाँ पे function हो जाएगा production activities related to medicine produce करेगा तो production department रहेगा medicine के लिए. Then here finance department will be there, then marketing department will be there, then purchase department, then sales department. Okay, so everything related to the medicine, every activities related to the medicine is grouped under the medicine department. Okay, then come to the textile department. Textile में भी आपको ऐसा ही होगा, purchase, marketing, production, finance, then sales. Okay, सेम आपका सोप डिपार्टमेंट सोप में भी होगा, लाइक परचेज, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फिनेंस एंड सेल्स. देन फुटवेयर में भी आप ले लीजिए परचेज, ओके, मार्केटिंग, देन प्रोडक्शन, देन फिनेंस, देन सेल्स. So each department's activities are grouped under the particular department. This is known as a divisional structure. Okay, so now we'll see on the, ये आपको clear हो गया what is divisional structure, what is functional structure. Now we'll move on to the that is advantages and disadvantages of these structures. Okay, so with the help of this और clear हो जाएगा आपको divisional structure क्या है and functional structure क्या है, कैसे काम करता है. Okay, so now come to the advantages of functional structure. Okay,
Okay, advantages of functional structure. Okay, so functional structure, first advantage is specialization. Okay, first is specialization. How functional structure leads to the specialization? See, फंक्शनल स्ट्रक्चर में आपको एवरी फंक्शंस और ग्रुप्ड, ओके, फंक्शंस जो भी फंक्शंस होगा वो ग्रुप्ड, सिमिलर जॉब्स जो भी होगा दैट इज ग्रुप्ड अंडर द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. सो नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बात ले लीजिए. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल डू ओनली द वर्क ऑफ प्रोडक्शन. उसमें और कोई काम नहीं करेंगे, लाइक परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, या फाइनेंस के लिए देखना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, या मार्केट रिसर्च करना. दे डोंट डू दैट वर्क. ओके, सो दे डू ओनली द प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क. ओके, सो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे. दिस आर ऑल द वर्क्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो व्हेन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डूइंग द पर्टिकुलर वर्क, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वर्क करने के लिए भी हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड पर्सन को ही हायर करेंगे. सो व्हेन द पर्सन इज अपॉइंटेड, द स्पेशलाइज्ड पर्सन इज अपॉइंटेड फॉर द पर्टिकुलर जॉब, अगेन एंड अगेन वो जॉब को करते रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली व्हाट हैपन, दे विल बिकम स्पेशलाइज्ड, एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, देन ऑटोमेटिकली दे विल बिकम स्पेशलाइज्ड इन द पर्टिकुलर जॉब. गॉट इट? सो स्पेशलाइजेशन फंक्शनल डिपार्टमेंट का एक एडवांटेजेस क्या है कि व्हेन we are creating functional structure in organization, then automatically वहाँ पे specialization create हो सकता है, या functional structure leads to the specialization. Okay, then second one is supervision, easy supervision. Okay, so what is easy supervision? See, whenever there is a workers, superiors are there and subordinates are there, then workers, employees are there. So employees को supervise करने के लिए there may be a supervisor. Okay, so what is the work of supervisor? They have to supervise the works or the activities performing by the employees. Okay, now production department में एक supervisor को हम रखे हैं, then automatically it is the duty of the supervisor. That person has to check whether the things are going according to the प्लान. ओके, ये उनको चेक करना होगा. नाउ ये जो अगेन एंड अगेन सेम थिंग, अगेन एंड अगेन ये पर्सन जो है उनको चेक करते रहेंगे, सुपरवाइज करते रहेंगे, देन ही बिकम फेमिलियर व्हाट ही हैज टू डू एंड किसको वो सुपरवाइज कर रहे हैं. देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो फेमिलियर होने की वजह से इजीली सुपरवाइज एंड गाइड कर सकते हैं जो पर्सन वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. सो इजी सुपरविजन हो जाएगा, क्योंकि उनको वो अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वही काम कर रहे हैं, वही पर्सन को सुपरवाइज कर रहे हैं, वही सेम वर्क को सुपरवाइज कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इजी सुपरविजन होगा. दे कैन गाइड इजीली द वर्कर्स. ओके, इजीली दे कैन सुपरवाइज इजीली द वर्कर्स, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि सेम थिंग को हमको सुपरवाइज करना है, सो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. Then come third one, easy coordination, that is coordination. यहाँ पे हम ले सकते हैं coordination. Okay, so it leads to the coordination. How it leads to the coordination? See, the departments, maybe the departments जो है हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, but these departments are interrelated. Okay, so interrelated departments है. So interrelated departments and work जो है यहाँ पे एक दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सभी जो है क्या करेंगे, एक साथ मिल के काम करेंगे. ओके, डिपार्टमेंट एक ही है, डिफरेंट फंक्शंस आर देयर. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस है, तो ये एक्टिविटीज जो है डिफरेंट एक्टिविटीज होगा, बट दे आर वर्किंग फॉर द पर्टिकुलर, दे हैव टू कंप्लीट द पर्टिकुलर टास्क ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टास्क उनको कंप्लीट करना होगा. सो इसमें क्या होगा, जो भी उनका हेड होगा, मैनेजर जो भी होगा, वो क्या करेंगे, उनको जो है इकट्ठा करेंगे, एक साथ काम करके वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो ऑटोमेटिकली हियर द फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्कर्स. ओके, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लीड हो रहा है. ओके, देन नेक्स्ट जो है हम देखेंगे, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. इंक्रीजिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी. Okay, how it helps in increasing managerial efficiency? Already I said that
पर्टिकुलर वर्क को जब हम करेंगे अगेन एंड अगेन रिपीटेडली हम वही पर्टिकुलर वर्क को हम करेंगे, देन ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। नथिंग, आप ले लीजिए, आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने का टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सेकेंड टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप एवरी डे रिपीटेडली वो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप अगेन एंड अगेन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि आपको वो समझ में आ जाएगा। सो एक बार पढ़ के समझ में नहीं आया ऐसा नहीं होता है, आप बार बार वही चीज को करते रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आपको उसमें इजीली आपको समझने लगेंगे। सो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। सेम जो भी मैनेजर रहेगा, वो पर्टिकुलर मैनेजर इज डील्स विद दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही काम उनको करना होगा। सो वहाँ पे कोई भी डिफरेंट डिपार्टमेंट का काम वो लेके नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे कंफ्यूजन अराइज नहीं होगा। सो व्हेन देयर इज नो कंफ्यूजन, ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। रिपीटेडली वो काम करने की वजह से एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव ट्रेनिंग। ओके, इफेक्टिव ट्रेनिंग। See, effective training. Again, functional department leads to effective training. So, effective training in the sense, for example, production department है, okay? So, production department में we have to give training only for production department skills. Okay, production department का जो skills होगा, वही skills का training हमें देना होगा. So, वहाँ पे हमें ज़्यादा problem नहीं होगा. So, only production department का training हमें देना है, तो according to that जो भी training होगा, वो training हम देंगे. तो it becomes easy to provide training for that particular production. So इस particular production department, इसी तरह each and every department, अलग अलग department रहेगा, तो अलग अलग department में अलग अलग person रहेंगे, उनको according to the department उनको training देना होगा. So it will become easy to give training or to guide the persons. Okay, so these are all the advantages of functional structure. Okay, now हम देखते हैं, there is the advantages, definitely there may be a disadvantages. So what are all the disadvantages, ये हम देखते हैं. Okay, so now disadvantages. So what is the disadvantages, ये हम देखते हैं. So disadvantages, definitely first one is difficult in achieving organizational goals. Okay, difficulty in achieving organizational goal. How? Difficulty in achieving organizational goal. यहाँ पे हम देखे थे स्पेशलाइजेशन, इजी सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, इफेक्टिव ट्रेनिंग. नाउ यहाँ पे बता रहे हैं कि डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना डिफिकल्ट होगा. व्हाई? बिकॉज we are working in a particular department. For example, I am working I am working in a commerce department. So मैं क्या करूँगी, कॉमर्स डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचूंगी और कुछ ज़्यादा नहीं सोचूंगी. मेरा अपना ही सब्जेक्ट के बारे में मैं सोचूंगी. डेफिनेटली मेरा अपना सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगी, मेरा अपना सब्जेक्ट में इतना मार खाना है, ये मैं सोचूंगी. सो उसके हिसाब से मैं काम करूँगी. तो मेरे ही सब्जेक्ट का ही वहाँ पे मैं काम करने वाली हूँ और किसी का भी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. सो हियर माई गोल इज टू अचीव इन माई सब्जेक्ट ओनली. ओके, सो यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं अपने ही सब्जेक्ट के बारे में सोच रही हूँ और किसी का नहीं सोच रही हूँ. बिकॉज ऑफ दैट जो टोटल गोल होगा, जो बाकी गोल, जो भी एक पर्टिकुलर गोल होगा, वो गोल तक मैं जाना नहीं चाहती हूँ. बिकॉज आई एम बिजी विथ माई गोल्स. ओके, बिजी विथ माई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गोल. सो वो उसके हिसाब से हम करेंगे तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो मेन गोल है, वो गोल तक हम रीच नहीं हो पाएंगे. सो हियर आल्सो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट वाइज आपके पास रहेगा. फंक्शनल बेसिस में हम डिवाइड करके कर रहे हैं. सो डिपार्टमेंट वाइज काम करेंगे. सो एवरी डिपार्टमेंट थिंक्स देयर ओन गोल ओनली. वो क्या करेंगे, अपना ही गोल्स को अचीव करने के लिए, अपना ही टारगेट को अचीव करने के लिए करने के हिसाब से काम करेंगे. बिकॉज ऑफ दैट दे फेल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड.
Okay, departmental heads attitude. Because of departmental heads attitude also वहाँ पे conflict arise होने का chances are there. How? Every head of the department thinks that they have to do their best, they have to complete their task. They don't bother about the other persons. Because of that यहाँ पे क्या हो सकता है? For example, if I want resources, so resources है, मुझे कुछ चाहिए तो automatically मैं क्या करूँगी, मुझे पहले मिलना चाहिए, ऐसा सब बात करूँगी. So यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्योंकि डिपार्टमेंटल each and because it is interdependent, it is what interdependent, interrelated one. So each and every department is interrelated one. यहाँ पे किसी को भी कोई भी problem होगा, definitely it will affect the other department. But the managers are not thinking about that. They are thinking only their goal. Okay, their task. वो अपना ही task को सोचेंगे, अपना ही achieve करना सोचेंगे. Because of that यहाँ पे क्या हो सकता है? Conflict arise होने का chances are there. So because of departmental heads attitude, there may be a chance to arise conflicts. Okay, then difficult to fix accountability. Difficult to fix accountability. See, the structure, when we are studying the organizational structure, so organizational structure includes all these things only. Accountability, authority, responsibility. That means what? किसको क्या responsibility देना है, उसके लिए कौन सा authority हमें provide करना होगा, and who is accountable for the particular work. So ये तीनों ही क्या है important है in this organizational structure. इसके बारे में हम next topic में पढ़ेंगे. तो here, so accountability fix करना, it becomes difficult. It becomes difficult. For example, because of any one department, the organization fails to achieve the organizational goals, but the organization cannot fix accountable for a particular accountable for this failure to a particular department. For example, it may be हो सकता है sales department की वजह से हम organizational goals को achieve नहीं कर पाए होंगे, या production department की वजह से हम goal को achieve नहीं कर पाए होंगे, but we can't fix accountable for that particular department for failure of the success. Okay, so यहाँ पे यह एक problem होगा, हम किसी को भी हम accountable नहीं ठहरा सकते हैं. Then fourth one is inflexibility. Here I said that effective training, okay, because one production के लिए हम one department के लिए हम training दे रहे हैं, so because of that it is effective, okay, effective training हम दे सकते हैं. But the same thing particular department के लिए खाली हम training दे रहे हैं, particular department में जो भी persons work कर रहे हैं, they are trained only for their department. So because of that they don't know about about the other department, or they don't have the knowledge about the other department, या other डिपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा ये हेल्प नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. सो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है कि अदर डिपार्टमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सो वी कांट हेल्प दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बिकॉज वी डोंट हैव दैट ट्रेनिंग, दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग. सो हम क्या नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते. सो इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी. ओके, सो दिस इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. होप you understood. Okay, next we move on to the next topic, that is advantages and disadvantages of divisional structure. Advantages and disadvantages of divisional structure. Okay, divisional structure. We know that divisional structure means what? It is divided according to the product. Okay, product or territory or region. Okay, according to the territory, according to the region. जैसा होता है ना कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांचेस और देयर, सो वो ब्रांचेस के हिसाब से भी हम रखेंगे. सो दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. सो नाउ वी विल सी द व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट एडवांटेज इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. First advantages is what?
product specialization. Product specialized, the person those who are working under the particular department, he will get or he will become a specialized person of that particular department. वो particular department में हम कैसा काम करेंगे, कैसा कौन कौन सा वर्क कैसा करना होगा, he will become familiar of that one. Okay, same thing यहाँ पर भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट इज देयर, सोप डिपार्टमेंट इज देयर या टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इज देयर. अ पर्टिकुलर पर्सन वर्किंग अंडर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड. प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड, मेडिसिन प्रिपेयर करने वाला मेडिसिन में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. मेडिसिन प्रिपेयर कैसे करेंगे, मेडिसिन कैसा प्रोडक्शन करना होगा, कैसे उसको सेल करना होगा, ये इसमें जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे. सो डिविजनल स्ट्रक्चर लीड्स टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. वहाँ पे क्या होगा, फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होंगे. यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे. ओके, द नेक्स्ट इज फास्ट डिसीजन मेकिंग. Fast decision making. See, every department is different. Okay, डिपार्टमेंट डिफरेंट इन द सेंस डिविजन, जितना भी हम डिवाइड करके रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन. ओके, प्रोडक्ट लाइन इन द सेंस द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से हम प्रोडक्ट को डिफर करके रखे हैं, डिवाइड करके रखे हैं. नाउ डिविजन मेडिसिन डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो मेडिसिन डिपार्टमेंट लेंगे. सोप डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो सोप डिपार्टमेंट लेंगे. टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो भी डिसीजन लेना होगा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट लेंगे. देन फुटवेयर का जो भी डिसीजन लेना होगा फुटवेयर लेंगे. तो यहाँ पे एवरी डिपार्टमेंट इज डिफरेंट. ओके, एवरी डिपार्टमेंट डिवीजन जो भी होगा वो डिफर है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है. इसलिए वी डोंट, देयर इज नो नीड टू वेट. हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेने के लिए वेट करना जरूरी नहीं है. इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपना डिवीजन का जो भी डिसीजन होगा, इफ आई वांट टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग मेडिसिन या आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू मेडिसिन, दैट इज न्यू प्रोजेक्ट रिगार्डिंग द मेडिसिन, देन आई कैन टेक डिसीजन क्विकली बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मेडिसिन. सो मुझे किसी और का सजेशन का जरूरत नहीं है. सो ऑटोमेटिकली आई कैन टेक डिसीजन इजीली. ओके, सो फास्ट डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हम ला सकते हैं. देन अकाउंटेबिलिटी. We can fix accountability here. In case medicine department is failed to achieve the target or medicine department is failed to achieve the goal, then automatically we can fix accountability on the medicine department. The manager of the medicine department will be the accountable person for the failure, isn't it? आप क्योंकि एक डिवीजन है, वो डिवीजन के अंदर जो कुछ भी होगा, whether ये they got success or they got failure, everything is goes to the manager only. So हम accountable fix कर सकते हैं. The organization, head of the organization will ask a question from the medicine department only, why there is a problem. ये नहीं why there is a failure. ये नहीं है कि medicine department में जो failure हुआ है वो हम textile department से नहीं पूछ सकते हैं, isn't it? So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, we can fix accountability. We can fix accountability. The next is flexibility. फ्लेक्सिबिलिटी अंडर द मेडिसिन डिपार्टमेंट. यहाँ पे डिवीजन वाइज है, प्रोडक्ट वाइज है. सो मेडिसिन डिपार्टमेंट, सोप डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट. सो डिवीजन है. तो डिवीजन मेडिसिन डिपार्टमेंट हैज टू डू ऑल द वर्क, दैट इज प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एवरीथिंग. सो वहाँ पे जो भी होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक पर्सन को जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो भी होगा वो सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. So here we can give training regarding that. Because of that यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि हम एक साथ एक डिवीजन का जितना भी वर्क होगा दैट इज ग्रुप्ड, सिमिलर जॉब्स और ग्रुप्ड. सो वहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है. द नेक्स्ट जो है ग्रोथ. ओके, सो ग्रोथ ऑलरेडी आई सेड हियर दैट if I want to change, if I want to select a new project, then I can easily select a new project because it is related with my
हाई डिवीजन, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकती है, वो जो भी होगा वो डिसीजन हम इजीली ले सकती है. सो एक्सपेंशन, इफ आई वांट टू एक्सपैंड न्यू प्रोजेक्ट, सम न्यू मेडिसिन या अदर टेक्सटाइल्स में कुछ करना चाहती हूँ, या सोप में या फुटवेयर में कुछ करना चाहती हूँ, देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी डिसीजन है इजीली ले सकते हैं, एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी इजीली डिविजनल स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है. ओके, गॉट इट द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट होगा more resources required. Okay, more resources required. See, when everything is divided under according to the product, then automatically every division needs resources. That is, every division यही सोचेंगे कि सारा resources मुझे मिलना चाहिए, मुझे पहले मिलना चाहिए. So because of that, it will create a lot of cost. Okay, cost आपको ज़्यादा हो जाएगा. More resources ज़्यादा, आप number of product line आपके पास ज़्यादा है, definitely you need resources large. Okay, large amount में resources आपको ज़रूरत पड़ेगा. Because of that, cost आपको ज़्यादा हो सकता है. Then second one is product focus. Product focus department. So definitely here, when I am working under the medicine department, I am going to focus on the medicine department only, medicine related works only. I am not going to focus any other department. So यहाँ पे बाकी division के यहाँ वो जो है वो मैं नहीं देखूंगी, सिर्फ मैं अपना काम देखूंगी. Because of that यहाँ पे बहुत सारा problems arise हो सकता है. So product focus से ही मैं काम करूंगी. Then third one is conflict. Already I said that I need conflict, that is I need more resources. That is, when the resources when it comes regarding the resources, then automatically I feel that I have to get all the resources first. Okay, so because of that यहाँ पे क्या हो सकता है, conflict arise हो सकता है. So this is the disadvantages of divisional structure. Hope you understood. Okay students, I hope you understood the topic clearly, the functional structure and the divisional structure, and what is the need of a structure in organization. So we will meet in the next class with the new topic. Till then, take care, keep learning. Thank you.